Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Mr. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is again a Venn diagram based set, basically a chocolate distribution set, which I've taken from previous year papers. And the set says Mrs. Nunani Kaprawala is the owner of ready-made garment store in the Pune, India. Her store is known for a good quality clothes acquired from both domestic and imported sources. Cloth is the store. Clothes in the store can be classified into three categories based on the material used: cotton, synthetic, and leather. The shop has two separate floors. The first floor is used exclusively for women clothing, and the second is used only for men's clothing. Mrs. Kaprawala is taking physical stock of the garment available in the shop on 31st March night to check whether the stock registers are properly maintained or not. Total stock of the garment found in the shop was 5,000 item. Here, each piece of garment has been referred to as an item. Further, Mrs. Kaprawala got to know about the following facts. 44% of the total item were imported, while 33% of the total item were of men's clothing. Okay. Non-leather item constitute 72% of the total item available and 55 whole 4 अपॉन 9 बेसिकली ये 55 और 5 अपॉन 9 है 55 और 5 अपॉन 9 ऑफ द आइटम आर ऑफ कॉटन आइटम्स ठीक है 52.5 sorry 42.5% of the cotton items and 46 whole 7 upon 8% of the synthetic items are imported. For women's clothing, domestic leather item is items exceeds the imported leather item by half the number of the leather item for men's clothing. Half of the leather item for men's clothing are from the domestic sources. The number of cotton items acquired from domestic sources for the women was 750. The number of cotton items for men's clothing were 100 less than that. Total domestic item found for women's clothing was 1950. क्वेश्चन पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द एवरेज सीपी पर आइटम ऑफ द लेदर product available in the shop for men's clothing acquired from a domestic sources 2450. What is the total CP of all such item available in the shop? Question number 2 कह रहा है the average CP per item of the cotton product of men's clothing is rupees 1300 and that of women's clothing is 775 only. What is the absolute value of the difference between the total price of all cotton product of men's clothing and all cotton products of women clothing? What is the ratio of the number of imported men's clothing item of the total? Uh, what is the ratio of the total imported men's clothing item to total men's clothing item? Question number 4 कह रहा है all the items available in the shop have been categorized into 12 categories based on all possible combination of material used, cotton, synthetic, and leather sources from where they were acquired, domestic and imported, and gender of men and women. Which of the following category has the smallest number of item? ठीक है अब इसको हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का सेट कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। डोंट जंप बाय क्रिएट मतलब इसको वो 3 वेरिएबल से ऐसे बनाना और 2 वेरिएबल से बनाना वुड बी वेरी चैलेंजिंग। इसको हम कैसे कर सकते हैं? यू कैन मेक अ टेबल और सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है आप इसका एक बड़ा नंबर लो और उसको नैरो डाउन करते रहो, ठीक है? ऐसा सेट हमने पीछे डिडक्टिव रीज़निंग वाले में भी कर रखा है, ऐसा सेट हमने जब डीआई वाला करा था तो भी कर रखा है, ठीक है? अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है? जैसे लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस अगेन हमें क्या पता है कि भई कोई एक नूरानी कपड़ा वाले हैं जिनके पास फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे उन्होंने सेग्रीगेट करा हुआ बेसिकली मेंस और वुमेन्स में, ठीक है? तो एक उनका सेग्रीगेशन है मेंस और वुमेन्स का, एक सेग्रीगेशन है मेंस और वुमेन का, ठीक? एक सेग्रीगेशन है सिंथेटिक के प्रोडक्ट का, कॉटन सिंथेटिक और ये, ठीक है? कॉटन, सिंथेटिक एंड लेदर, ठीक? एक सेग्रीगेशन ही हो गया, दूसरा सेग्रीगेशन ही हो गया, ठीक है? द शॉप हैज़ 2 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन्स, ठीक है? एंड द सेकंड फ्लोर इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर मेन्स, ठीक? ये भी हमने लिख दिया ना। हमने यहाँ पे ये दोनों को मेंशन कर दिया कि भैया फर्स्ट और सेकंड। आई डोंट नो आगे यूज़ आएगा कितना बट ठीक है, हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है? क्या था द शॉप हैज़ 2 सेपरेट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर इज़ यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर अच्छा सही लिखा था पहले, फर्स्ट एंड वुमेन्स का था और मेंस का था सेकंड, ठीक है? Mrs. Kaprawala is taking a physical stock of the garment available in the shop on the 31st March to check whether the stock register are properly maintained or not. The total stock of the garment was given as 5,000 item. यानी कि ये 5,000 का अपने को सेग्रीगेशन करना है
अब वो सेग्रीगेशन 3 तरीके से होने वाला है। पहला सेग्रीगेशन है मेल और फीमेल की क्लोथिंग का, दूसरा सेग्रीगेशन है इनका क्या कहते हैं इम्पोर्ट और वाला मतलब डोमेस्टिक और इम्पोर्ट वाला, और तीसरा ये भी लिख देता हूँ, डोमेस्टिक और इम्पोर्ट का सेग्रीगेशन है, और तीसरा सेग्रीगेशन है मटेरियल का, कि मतलब वहाँ पे जो कॉटन का है, सिंथेटिक का है या लेदर का है, इनके हिसाब से अपने को पूरा सेग्रीगेशन करना है। ठीक है? चलो पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से देखेंगे कि इसका जो सेग्रीगेशन है वो कैसे हम नैरो डाउन करें। फर्दर द फॉलोइंग further Mrs. Kaprawala got to know about the following facts. 44% of the total item were imported while 33% of the total item were of men's clothing. ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो मेरे पास 2-3 चीज़ें मिलती जा रही है ना, इसको थोड़ा-सा मैं जगह बना के चलता हूँ ना, अभी मैं इतना स्प्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है? पहले ना हिंट लिख लेता हूँ एंड देन आई विल ट्राई कैसे कर सकते हैं। 44% ऑफ द आइटम आर इम्पोर्टेड, ठीक है? इम्पोर्टेड में अगर 44% है, 44% ऑफ दिस वैल्यू यानी कितना आ जाएगा? 5 4 ज़ा 20 कैरी टू 5 4 ज़ा 20 यानी कि 2200, ठीक है? यानी कि डोमेस्टिक क्या होना चाहिए? रिमेनिंग होना चाहिए, ठीक है? कितना बच जाएगा तुम्हारा? 56% यानी कि इससे माइनस कर लेंगे, तो 6 5 ज़ा 30 कैरी 3 और 5 2 28,000 मतलब 2800 सॉरी, ठीक? अच्छा। 44% ऑफ द टोटल आइटम आर इम्पोर्टेड एंड 33% ऑफ द टोटल आइटम फॉर मेंस क्लोथिंग, ठीक है। 5,000 में से अपने को ये भी दिया हुआ है कि मेंस वाले कितने और वुमेन्स वाले कितने। मेंस के कितने 33% यानी कि 30% हो जाएगा इसका 15,000 और 15,000 में 1500 और ऐड करो तो बन जाएगा कितना 16,500, ठीक है। सॉरी 1650 ना, मैं बार-बार वो 50,000 के नंबर पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। 1650 एंड रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1650 350 और 2350 नहीं 3350 ठीक। ऐसा वुमेन का मिल गया, पॉइंट नंबर 1 नोटेड। अभी क्या है ना कि ये इम्पोर्ट में और सेग्रीगेशन इसमें मेंस का भी है, वुमेन्स का भी है। डोमेस्टिक में भी मेंस और वुमेन है। उसमें फर्दर सेग्रीगेशन है कि वो लेदर है, नॉन लेदर है, तो ऐसा अभी नहीं पता ना, तो अभी मैं पहले ऐसे नंबर्स लिखते जा रहा हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू क्रिएट मर्ज द टेबल या कुछ ऐसा एक टेबल बना लूँगा जहाँ पे वो सारे डेटा जो है वो इंटरलिंक्ड होते हुए दिखाई दें। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 नॉन लेदर आइटम कांस्टीट्यूट 72% ऑफ द टोटल आइटम अवेलेबल एंड 55 होल 4 5 बाय 9 ऑफ देम आर कॉटन, ठीक है। 72% जो है नॉन लेदर है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका जो 28% लेदर होने वाला है, यानी कि लेदर का कितना आने वाला है 72% नॉन लेदर है ना, तो 28% लेदर है, 28% लेदर का मतलब 1400, ठीक? ऐसा सही है? यानी कि कॉटन प्लस सिंथेटिक का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कॉटन प्लस सिंथेटिक की बात करूँ, तो ये कितना है 72% है, यानी कि 14 3500 और 3600 यानी कि ये कितना है 3600 है, ठीक है। उसमें भी कह रहा है कि भैया 55 व्होल 5/9 इज़ ये, ठीक है। 55 और 5/9 5/9 कितना होता है अगर आपको पता हो तो? 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11.11 तो 5/9 कितना हो जाएगा 55.55 तो ये बेसिकली अ, ये जो तुम्हें कहना चाह रहा है ये 55 इंटू 9 है, ऐसा कह सकते हो। 500/9 है बेसिकली, ठीक है? वो ऐसा है, ठीक। तो अब 500/9 के लिए क्या करेंगे 3600/9 कितना हो जाएगा 4000 है ना? सॉरी अरे ऐसा ही है ना यार देखो 500/9 इंटू कितना है 3600 तो ये कितना आ गया 400 ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज तो यार काट ही दोगे ना, तो कितना आ गया 2000 आ गया दिस इज़ कॉटन ठीक। तो 2000 आ गया तुम्हारा ये, तो 2000 डिवाइडेड बाय 3600 ये आ गया तुम्हारा 55.55 यानी कि पीछे कितना बचा 1600 बच गया सिंथेटिक का, ठीक है। अभी ध्यान दो तो मेरे को जो मेजर जो सेग्रीगेशन था वो मिल गया, इनका हेड मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, साथ-साथ में अपन जगह बनाते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो इसमें चाहो तो तुम, ये 55.55 वाला कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अ, पॉइंट नंबर 2 नोटेड, पॉइंट नंबर 3 42.5% ऑफ द कॉटन आइटम एंड 46.7/8 ऑफ द कॉटन सिंथेटिक आइटम्स आर इम्पोर्टेड। अच्छा, इस कॉटन का जो ये 2000 है, इस कॉटन में अपने पास कह रहा है कि 42.5% यानी कि
5 टू ज़ा 10, 4 टू ज़ा 8 और 4 फोर ज़ा 8 4 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 42 और 85 8500 ठीक है? 2000 में से 8500 42.5 इधर 43 2 4 ज़ा 8 हाँ, ठीक है, सॉरी 85 तुम्हारे आ गए। कौन-सा ये 85 इज़? इम्पोर्टेड ना? ये तुम्हारा आ गया इम्पोर्टेड, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया? 85 100 नहीं था ये 85 850 था सॉरी, ठीक है? 850 यानी कि पीछे कितना बच गया तुम्हारा? अ, 1200 1150 इज़ योर डोमेस्टिक, ठीक? अब यहाँ पे ध्यान दो तो इसमें से एक पार्ट तुम्हें मिल चुका है, 850 कॉटन वाला, ठीक है? एंड इसमें से ये पार्ट भी मिल चुका है, 1150 अगेन कॉटन वाला, ठीक? अब बाद में ना ये सब मर्ज हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए एक अलग से टेबल तुम बना के मर्ज कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, 42.5% of the cotton items and 46.7/8% of the synthetic items are imported. अच्छा, सिंथेटिक के लिए भी बता दिया है। सिंथेटिक कितना है? 1600 है, ठीक है? इस 1600 का सेग्रीगेशन अपने को क्या दिया हुआ है? 46 होल 7/8 46 होल 46 इंटू 8 प्लस 7 कर दोगे तो 375 बटे अ, 8 आ रहा है ना, तो 375 इंटू 16 और इंटू 2 कर लो बस सीधे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 375 इंटू 2 इज़ 750 यानी कि ये आ गया तुम्हारा कितना? 750 अगर ये 750 है तो पीछे क्या बचना चाहिए? 11 नहीं 950 950 भी नहीं 850 ठीक है, 850 और 50 करेंगे तो 900 और 700 1600 और क्या बोला था ये इम्पोर्टेड वाला आइटम है ना, ये इम्पोर्टेड है, तो ये भाई साहब अपने को निकल गया एक्सपोर्टेड, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 750 क्या है? सिंथेटिक है। ऐसे ही यहाँ पे 850 क्या है? ठीक है? थोड़ा इसको ना साफ-सुथरा लिख के चलता हूँ बिकॉज़ मेरे को बाद में ना सारी वैल्यूज़ को क्लब भी करना है। ये 11 था, ठीक है? ये था मेरा 1150 और अभी मैंने क्या निकाला था 750 था किसका? सिंथेटिक का, ठीक? और इधर क्या बच गया था 850 किसका था? सिंथेटिक का, ठीक है? यानी कि 850 प्लस 750 कितना हो जाएगा? 850 प्लस 750 हो जाएगा तुम्हारा अ, 800, 900, 900 और 700 1600 यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा? 600 जो कि होना चाहिए किसका? लेदर का, ठीक है? यानी कि लेदर होना चाहिए 800 यहाँ पे लेदर, ठीक? यहाँ से ये भी निकल चुका है अपना ये वाला पार्ट। 600 अपना निकल गया इम्पोर्ट वाला पार्ट एंड 800 निकल गया डोमेस्टिक वाला पार्ट। ठीक है जी, ये भी हमने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया। इसको ज़रा क्रॉस चेक कर लो। अ, 800 और 850 ये 1200 2000 2800 ठीक है, ये पूरा नंबर मैच हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 ने इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक? पॉइंट नंबर 4 फॉर वुमेन्स क्लोथिंग डोमेस्टिक leather item exceeds the import leather item by half the number of the leather item for men's clothing. अच्छा, फिर से लाइन को पढ़ते हैं। फॉर वुमेन्स क्लोथिंग की बात करें यानी कि इसकी बात कर रहा है 3350 की। डोमेस्टिक लेदर आइटम इनके अंदर जो डोमेस्टिक लेदर आइटम है दैट एक्सीडेड द इम्पोर्टेड लेदर आइटम बाय हाफ द नंबर ऑफ द लेदर आइटम फॉर मेंस क्लोथिंग। अच्छा, स्टेटमेंट का कुछ भी यूज़ अभी नहीं मेरे को दिख रहा है। हाफ ऑफ द लेदर आइटम्स फॉर मेंस क्लोथिंग आर फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस। हाफ ऑफ द लेदर आइटम ऑफ मेंस क्लोथिंग आर फ्रॉम ये भी। अभी क्योंकि मेंस क्लोथिंग का अपने को कुछ भी नहीं पता तो मैं कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पाऊँगा। तो लेट्स वेट ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 मेरे को पूरा रुकना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 द नंबर ऑफ कॉटन आइटम्स एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस फॉर द वुमेन वाज़ 750। अच्छा, वुमेन के लिए 750 था कॉटन, ठीक, तो टोटल कॉटन अपने को दिया हुआ यहाँ पे कितना है? टोटल कॉटन कितना था? 2000 था, तो यानी कि मेंस के लिए कितना होना चाहिए? 2000 माइनस ये, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा हाँ,
सही कर रहा हूँ ना? फिर से पढ़ लेते हैं, कुछ में लाइन ऐसा तो नहीं। द नंबर ऑफ कॉटन आइटम एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज़ ओके, रुकना पड़ेगा ना? ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होगा कॉटन फ्रॉम डोमे बिकॉज़ यहाँ पे ना देखो ये 750 और ये जो नंबर है ना, ये नंबर थोड़ा मैच नहीं कर रहा था। हाँ, यहाँ से ये नंबर निकाल सकते हैं कि भई 750 में डोमेस्टिक में कॉटन कितना है? डोमेस्टिक में कॉटन कितना है? 1150 है। जिसमें से 750 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 400 आना चाहिए था। ठीक? ये आ गया तुम्हारा कॉटन और डोमेस्टिक। एक कॉटन और डोमेस्टिक। इट इज़ हाई टाइम दैट कि हम ये इसको ना टेबल को ग्रिड में डाल दें, नहीं तो फिर अपन फँस जाएँगे। ठीक है? सिंस आपके पास जगह होगी बट मेरे को थोड़ा जगह बना लेना चाहिए यहाँ पे। एक काम करता हूँ ना, ये नंबर को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ये 5000 में से लेदर कितना है? 1400 है, ठीक है? कॉटन है तुम्हारा 2000 एंड सिंथेटिक था 1600, ठीक है? ये नंबर अपने को नोट हो गया। अब ये ज़रा जगह बना लूँगा ना, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान बन सकती हैं, ठीक? ठीक है, लेट्स स्टार्ट ना। 5000, उस 5000 को मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ इम्पोर्टेड में, व्हिच इज़ 2200 या मैंने सॉरी और डोमेस्टिक में व्हिच इज़ 2800। अब इसको मैं फर्दर सेग्रीगेट करूँगा किसमें? कॉटन में व्हिच इज़ 850, ठीक है? सिंथेटिक में व्हिच इज़ 750 एंड लेदर में व्हिच इज़ 600, ठीक? अच्छा, फिर इस डोमेस्टिक को भी मैं सेग्रीगेट करूँगा 3 चीज़ों में, जो कि अगेन क्या है? कॉटन है व्हिच इज़ 1150, ठीक है? सिंथेटिक है व्हिच इज़ 850 एंड लेदर है व्हिच इज़ 800, ठीक? ये मिल गया। अब थोड़ा फिर से चलते हैं, अभी अपने को ये कहानी बताया था ना, क्योंकि मेल और फीमेल वाला बता रखा था, तो वहाँ से अपन दिमाग लगाते हैं, ठीक है? अपने को फिर से वो पॉइंट पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ कॉटन आइटम्स एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज़ फॉर द वुमेन वाज़ 750, ठीक है? डोमेस्टिक सोर्सेज़ फॉर द वुमेन, द नंबर ऑफ कॉटन आइटम्स यानी कि यहाँ पे डोमेस्टिक यानी कि इसकी बात कर रहा है, वाज़ 750 यानी कि इधर अगर बात करें, अगर वुमेन का इज़ 750 तो मेन का क्या होना चाहिए? मेन का आना चाहिए 400, ठीक? ये मिल गया। अच्छा, फिर से वो लाइन पढ़ दे, द नंबर ऑफ कॉटन कॉटन आइटम्स एक मतलब यार ये देखो तुम पेपर वाले फेज़ में तो तुम्हारे लिए ये जो मैंने अभी 2 मिनट वेस्ट हुआ है, वो तो तुम्हारा वेस्ट नहीं हो रहा होगा ना, वो तो तुम फट से जंप कर जाओगे। ठीक है? तो इतना मत परेशान हो कि यार इतना बड़ा सेट क्यों जा रहा है? इतना बड़ा सेट नहीं है, वो टाइम जा रहा है बिकॉज़ मेरे पास स्क्रीन का लिमिटेशन है, आपके पास नहीं होगा। ठीक है? द नंबर ऑफ कॉटन आइटम्स एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज़ फॉर द वुमेन वाज़ इतना, तो कॉटन आइटम डोमेस्टिक सोर्सेज़ का 750 था, क्योंकि मेरे को कॉटन आइटम डोमेस्टिक का पूरा पता था 1150, तो ये आ गया कितना 400 है, ठीक है? अच्छा, आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कॉटन आइटम्स फॉर मेन्स क्लोथिंग वाज़ 100 लेस देन दैट, द नंबर ऑफ कॉटन आइटम फॉर मेन्स क्लोथिंग, ठीक है? वाज़ 100 लेस देन दैट, जो पूरा मेन्स क्लोथिंग का जो वो है दैट इज़ लेस देन 100 इससे, यानी कि पूरा मेन्स क्लोथिंग का कितना होने वाला है कॉटन के लिए, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये होने वाला है मेंस का 650, ठीक है? तो वुमेन्स का कितना हो जाएगा दिस माइनस ये, यानी कि 2000 में से 650 माइनस कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1350, 1350, ठीक है? अब उस 1350 में से भी अगर हम बात करें
तो 750 तो यहाँ पे मिला हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए था? यहाँ पे वुमेन आ जाना चाहिए था कितना? 600 एंड मेल कितना आना चाहिए था? ये 400 है, तो 400 में से 650 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 250, ठीक है? सही है? तो 600 और 250 8 साढ़े 800 ये नंबर पूरा सेट होता हुआ दिख रहा है। सो पॉइंट नंबर यूज़ करके हमने इतनी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया, ठीक? टोटल डोमेस्टिक आइटम फाउंड फॉर वुमेन्स क्लोथिंग वाज़ 1950, ठीक है? वुमेन्स के लिए जो टोटल डोमेस्टिक आइटम थे दैट वाज़ 1950, ठीक? अच्छा, टोटल वुमेन का आइटम कितना है? अपने पास 1350 है, ठीक है? 1350 में से अपने पास कह रहा है कि भाई 1350 में से 3350 में से 1950 आपका डोमेस्टिक का है, ठीक है? यानी कि जो तुम्हारा इंटरनेशनल है वो भी मिल सकता है यहाँ से। 1950 अगर डोमेस्टिक है, तो यानी कि रिमेनिंग कितना हुआ? 1400 हुआ, ठीक है ना? यही हुआ ना भैया? 1950 में से 1400 माइनस कर सॉरी 1400 ऐड कर लो तो दिस विल बिकम 3350, यानी कि ये कितना आ गया? इंटरनेशनल आ गया, ठीक है? इस पॉइंट को यूज़ करके आई कैन फिगर आउट वैल्यू फॉर दिस आल्सो ना, कि मेंस का कितना है, ठीक है? ये भी लिख देता हूँ। टोटल डोमेस्टिक कितना है अपने पास? टोटल डोमेस्टिक है 2800, जिसमें से 1950 यहाँ पे है, ठीक है? एंड इंटरनेशनल कितना है? 2200, तो जिसमें से 1400 यहाँ पे है, तो यानी कि यहाँ पे बचा हुआ 800 आना चाहिए था, तभी वो आएगा, ठीक? एंड 1950 में यहाँ पे जो भी बच रहा है वो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। 1950 में अगर 50 और 850, ये आ गया तुम्हारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फॉर मेन्स आल्सो, ठीक? पॉइंट नंबर 6 आल्सो नोटेड। नाउ लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर इस पे आ जाते हैं 4 पे। वो शायद अपने को चीज़ों को मदद करे कंप्लीट करने में, बिकॉज़ देखो ये नंबर को तोड़ते-तोड़ते अपन कहाँ-कहाँ पे पहुँच गए, इतनी सारी चीज़ों को हमने तोड़ लिया। ठीक है। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के सेट में ऐसे ही होगा कि मतलब यू विल हैव मेनी थिंग्स, और बहुत सारे लोगों को लगता है इसको वेन डायग्राम से करना है, बट ये वेन डायग्राम का इसका कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है? पॉइंट नंबर 4 को पढ़ते जो बचा हुआ था, फॉर वुमेन्स क्लोथिंग। अच्छा, वुमेन्स क्लोथिंग यानी कि यहाँ पे डोमेस्टिक लेदर आइटम, ठीक है? डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड द इम्पोर्टेड लेदर आइटम बाय हाल्फ द नंबर ऑफ द लेदर आइटम फॉर मेन्स क्लोथिंग। फिर से लाइन पढ़ते हैं, फॉर वुमेन्स क्लोथिंग डोमेस्टिक लेदर आइटम, जो डोमेस्टिक लेदर आइटम है यानी कि अ, डोमेस्टिक लेदर आइटम, ये नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? लेट्स से दिस इज़ ए, ठीक? ये नंबर, ठीक? फॉर वुमेन्स क्लोथिंग द डोमेस्टिक लेदर आइटम अब एकदम सही है। ये इट एक्सीड्स द इम्पोर्टेड लेदर आइटम, ये एक्सीड कर जाता है इम्पोर्टेड लेदर आइटम। इम्पोर्टेड लेदर आइटम कितना है? 800 से, ठीक है? डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड्स द इम्पोर्टेड लेदर आइटम बाय हाल्फ द नंबर ऑफ लेदर आइटम फॉर मेन्स क्लोथिंग। ये नंबर से एक्सीड कर जा रहा है किससे? हाल्फ, आधा किसका? हाल्फ द नंबर ऑफ द मेन्स क्लोथिंग। कुछ गड़बड़ पड़ रही है। एक बार फिर से विज़िट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, फॉर वुमेन्स क्लोथिंग अ डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड्स द इम्पोर्टेड लेदर आइटम। फॉर वुमेन्स क्लोथिंग डोमेस्टिक लेदर आइटम, यानी कि इसकी बात कर रहा है। डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड्स इम्पोर्टेड, ये एक्सीड कर जाता है, ये वैल्यू बढ़ जाती है किससे? इम्पोर्टेड लेदर आइटम्स। इम्पोर्टेड लेदर आइटम्स, ओके, यहाँ से ना, ठीक है। वही मैं सोचूँ क्यों हम कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे ये वैल्यू इससे एक्सीड कर ही नहीं सकती, ठीक है? अब सही है। ठीक। तो पेपर वाले फ़ेज़ में ना यार ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, जैसे ना बहुत शांत दिमाग से इस पे दिमाग लगाना। ऐसा ना हो कि हड़बड़ में तुमने कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक? फॉर वुमेन्स क्लोथिंग अ डोमेस्टिक लेदर आइटम वाज़ exceeded the imported leather item by half the number of the leather item for men's clothing, half the number of the leather item of men's clothing, ठीक है? मेंस में हाफ लेदर आइटम कितना है? अपने को पता है? यही नहीं पता अपने को, ठीक है? यानी कि ये वैल्यू हाँ, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा हम होल्ड करते हैं। लेट्स रीड द अदर हाल्फ ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है?
लेदर आइटम एक्सीड द लेदर बाय हाफ द नंबर ऑफ लेदर आइटम फॉर मेंस क्लोथिंग, हाफ द नंबर ऑफ लेदर आइटम ऑफ मेंस क्लोथिंग। अभी मेंस एक्चुअल में ना अपने को मेंस लेदर का बहुत सारा दिया नहीं है। मेंस लेदर अपने को दिया हुआ है क्या? बिकॉज़ लेदर 1400 पता है, बट मेंस लेदर अपने को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द लेदर आइटम फॉर मेंस क्लोथिंग आर फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज़। अच्छा, जो हाफ ऑफ द लेदर आइटम फॉर द मेंस, ठीक है, आर फ्रॉम डोमेस्टिक। अगर आधी वहाँ पे है तो आधी वहाँ होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें लेदर आइटम फॉर मेंस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की तो बराबर होना चाहिए, ठीक? फिर से पॉइंट पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द लेदर आइटम फॉर मेंस क्लोथिंग का जो लेदर आइटम का जो आधा हिस्सा है वो कहाँ का है? डोमेस्टिक का है, ठीक है? लेट्स से ये वाला ना, ये लेट्स से आधा हिस्सा है, ये बी है व्हिच इज़ हाफ, तो दूसरा हाफ क्या है? वो तो इसी के बराबर है, व्हिच इज़ अगेन बी। यानी कि यहाँ पे जो मेन है वो क्या होना चाहिए था? बी आना चाहिए था। अब मैं पॉइंट नंबर 1 को ऑपरेट मतलब जो इसका फर्स्ट हाफ है उसको ऑपरेट कर पाऊँगा, ठीक है? ठीक, अब देखो ये पॉइंट फिर से पढ़ते हैं ना, हाफ ऑफ द लेदर आइटम फॉर मेंस क्लोथिंग, हाफ कितना मतलब इन दोनों को मिला लेते हैं, 2 भी होना चाहिए था जिसको आधा-आधा कर दिया, आर फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज़, अगर ये आधा है तो आधा यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं इसका फर्स्ट हाफ पढ़ूँगा तो दिस कैन एक्चुअली हेल्प मी, ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये पार्ट मिल जाएगा तो इसको मैं इससे इक्वेट करके चीज़ों को फिगर आउट कर सकता हूँ, ठीक है? अब फर्स्ट हाफ पढ़ते हैं, ठीक? देखो फर्स्ट हाफ तुम्हें ना पढ़ते समय बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने क्या करा उस पॉइंट पे रोक दिया, मेरे को लॉजिक ही क्लिक नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिल सकता है एंड देन वापस मैं अब इस पे आ रहा हूँ, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 अब दोबारा पढ़ूँगा, देखो दिखाई देगा। फॉर वुमेन्स क्लोथिंग यानी कि इसकी बात कर रहा था। डोमेस्टिक लेदर आइटम यानी कि ये वाला बात था, डोमेस्टिक लेदर आइटम फॉर वुमेन्स ये वाला पॉइंट एक्सीड्स द लेदर आइटम बाय हाफ द नंबर ऑफ द लेदर आइटम फॉर मेन्स क्लोथिंग। अब यहाँ पे ये क्या है? अ, फॉर वुमेन्स क्लोथिंग डोमेस्टिक लेदर आइटम अभी ना मेंस का कितना होने वाला है? मेंस लेदर कितना होने वाला है? वो होने वाला है 2B, ठीक है? तो यार जगह बना लेते हैं। इसके लिए ना मेरे को 2 स्लाइड यूज़ कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, एनीवेज़। मेंस लेदर मेरा कितना हो जा रहा है? 2B, ठीक है? इसमें से आधा-आधा है। अब हाँ, अब इसको रेफर करते हैं। फॉर वुमेन्स क्लोथिंग डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड्स यानी कि डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड्स यानी कि इसकी बात कर रहा है। डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड्स द इम्पोर्ट लेदर आइटम, इम्पोर्ट लेदर से ये एक्सीड कर जा रहा है, कितने से? बाय हाल्फ द नंबर ऑफ द आइटम, ठीक है? यानी कि ये क्या होना चाहिए था? 2B माइनस A होना चाहिए था फॉर फीमेल, यानी कि वुमेन्स के लिए ये होना चाहिए था। ठीक? अभी लाइन को दोबारा अगर पढ़ते हो तो तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है? 2B नहीं, A माइनस B होना चाहिए था। वुमेन्स के लिए क्या होना चाहिए था? फॉर वुमेन्स क्लोथिंग द डोमेस्टिक लेदर आइटम एक्सीड्स द इम्पोर्ट लेदर आइटम बाय हाल्फ द नंबर ऑफ द लेदर आइटम, ठीक है? ये एक्सीड कर जाता है हाल्फ से, यानी कि ये क्या होना चाहिए था? A माइनस B, ठीक है? अब क्या ये एक्सीड कर जा रहा है इससे, यानी कि यहाँ पे ये सेटल हो जाएगा, ठीक? अगर अब अपन सॉल्व करें इसको तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अ, A माइनस B प्लस 2B प्लस A इज़ इक्वल्स टू 1400, ऐसा? ठीक है, यानी कि 2A प्लस B इज़ इक्वल्स टू 1400, ये वैल्यू अपने को यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है? जिसमें से अपने को पता है कि A प्लस B कितना होता है? 800 होता है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं A प्लस B 800, तो A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 600, ठीक है? अब ये देखो यहाँ से मैंने निकाला, यहाँ पे पता है ना A प्लस B कितना है? अगर A की वैल्यू मिल गई 600, तो नाउ आई कैन राइट डाउन ऑल द वैल्यूज़, ठीक है? अब देखो A की वैल्यू अगर 600 मिल चुकी है तो ये कितना मिल गया? 600, ये हो गया कितना? 200, ठीक है? ये भी पूरा हो गया 200 एंड ये कितना आ गया तुम्हारा? 400, ठीक? ये वैल्यू तुम्हारी पूरी यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 व्हिच वाज़ ट्रिकी बट आपका वो सॉल्व करके पूरा निकल गया।
अब लास्ट अपने पास कौन बच रहा है? सिंथेटिक बच रहा है, जिसके बारे में कुछ अपने को नहीं दे रखा है। सिंथेटिक निकालना मुश्किल है, देखते हैं। सिंथेटिक के बारे में, मेंस और वुमेन्स के बारे में कुछ दे रखा है? अभी तक तो नहीं दे रखा है। अपने को ये पता है कि सिंथेटिक कितना है? 750 का है, ठीक है? और 850 है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी पता कर पाना मुश्किल है। मेंस का टोटल सम कितना था? 1650 था, जिसमें से 600 250 यहाँ मिल गया, 200 यहाँ मिल गया, 200 यहाँ मिल गया, 400 यहाँ मिल गया। तो 400, 200, 600, ठीक है? 600 और सिंथेटिक का बस एक डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं ना कि मेल और फीमेल का कितना होगा, वो मिल जाएगा। मतलब मेंस और वुमेन का बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा? मेंस का कितना है? 250, 200, 450 और 450 और 450, 850, 850 और 1050, 1050, ठीक है? तो टोटल मेंस कितना था? 1050, जिसमें से कितना बच जाएगा? 600 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ से निकाला ना 250, 200 यानी कि 450, 450 और 400, 850, 1050, इसको इससे माइनस कर लिया तो ये निकल गया। अच्छा, वुमेन्स की बात करें, 600, 400, 1000, 1600, 1600 और 700, 2300, 2350, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 1000 आना चाहिए था। और सिंथेटिक का अपने पास देखो यही नंबर है जो कि यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है? इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे फिगर आउट कर ली, ठीक? नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और उसके हिसाब से आंसर्स को करना, मार्क करना शुरू करें। इतना पार्ट वाज़ ट्रिकी, मतलब पेपर वाले फेज़ में निकाल पाना मुश्किल है, ठीक है? मतलब ये बी, सी कैटेगरी सॉर्ट ऑफ सेट है। अगर आपने कभी, मतलब अब डिपेंड करता है कि बाकी सेट्स कैसे हैं, उसके हिसाब से वी नीड टू फिगर आउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था एवरेज सीपी ऑफ द लेदर आइटम अवेलेबल इन द शॉप फॉर मेंस क्लोथिंग एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स इज 2450, ठीक है जी। अच्छा, द एवरेज सीपी फॉर लेदर आइटम यानी कि इसकी बात कर रहा है। फॉर द मेन शॉपिंग एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक वाला यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक? तो कितना आ गया? 2450, 2450 में कितने आइटम है? इंटू 200 है, यानी कि 200 है तो मेरा कितना आ गया? 4,90,000, यानी आंसर क्या आना चाहिए? 4,90,000 आंसर आएगा और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? कुछ नहीं करा, ये पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इससे, कहाँ गया? ये वाले पार्ट से। तो 2450 इंटू 200, ठीक? ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 1, डन। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज सीपी पर आइटम ऑफ कॉटन प्रोडक्ट ऑफ मेंस क्लोथिंग इज 1300, ठीक है? कॉटन आइटम मेंस क्लोथिंग इज 1300, ठीक है? मेंस क्लोथिंग कॉटन, कॉटन मैंने ना सेग्रीगेट कर रखा था, ये रहा, ठीक? 650 इंटू 1300 एंड वुमेन्स इज 775। व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दी व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉटन आइटम फॉर, इन दोनों का कॉटन और इनका निकाला ना। तो कॉटन का कितना था अपने पास? कहाँ के अभी निकाला था? कॉटन का 650 था। तो 650 इंटू 1300, ठीक है? 650 इंटू 1300 माइनस 1350 इंटू 775, इसका सम निकालना है। तो 650 इंटू 1300, ठीक है? कितना आ गया अपना? 8,45,000, ठीक है? 8,45,000 एंड ये कितना? 1350, 1350 इंटू 775, ठीक? माइनस 845,000, ठीक है? 2,01,250, यानी क्या आंसर होगा? 2,01,250, 250। एक कैलकुलेटर ही भैया यूज़ करना पड़ेगा, इसके बिना यू कैन नॉट फिगर आउट दिस क्वेश्चन। इसका आंसर तो निकाल पाना मुश्किल है, ठीक है? कुछ नहीं, इन दोनों को बस माइनस करा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो तुम पेपर में कर ही नहीं पाओगे, मतलब अगर तुमने इतना सब काम कर लिया, मतलब ये शायद मेरा लास्ट सेट होगा करने का, या मेरा मतलब ऑब्वियसली ये पहला सेट होएगा ही नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इम्पोर्टेड मेंस क्लोथिंग आइटम टू टोटल मेंस क्लोथिंग आइटम, ठीक है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मेंस इम्पोर्टेड मेंस, मेंस का इम्पोर्टेड वाला यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, 1650 और 800, यानी कि 80 और 165, 80 और 165 का मतलब 5 से कर लो, 165 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 33, यानी कि 16 और 33। ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक? क्वेश्चन नंबर 4, all the items available in the shop have been categorized into 12 different categories based on all possible combination of material, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है? Which of the following 4 category has the smallest number of item? कॉटन इंपोर्टेड कॉटन वूमेन कितनी वैल्यू है? 600, ठीक है? सिंथेटिक
डोमेस्टिक वुमेन, ओके। अब देखो यार यहाँ पे ये निकला है तो मतलब ये वैल्यू भी अपनी निकल रखी होगी तभी ये चीज़ है। ये निकल सकती है क्या? अरे! ये भी तो निकाल ही सकते हैं ना, वी हैव दिस नंबर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। हाँ, ये भी निकाल सकते थे। देखो वी हैव दिस नंबर, तो मेरे को क्या पता है कि इम्पोर्टेड मेंस कितना है? इम्पोर्टेड मेंस कितना 800 है, ठीक है। अगर ये 800 है ना जिसमें से 200 यहाँ पे है, 250 यहाँ पे है, तो 200 और 250 माइनस करेंगे तो 450 यानी कि ये कितना आ गया? 350, तो ये कितना आ जाएगा? 400। चेक कर लो 6, 4 और 4 यानी कि 6, 4, 10, 16, 14। तो अरे! हाँ, ये देखो ये तुम्हारा 1400 मैच कर रहा है। ऐसे ही तुम यहाँ पे भी निकाल सकते हो, ठीक है? ये आ गया तुम्हारा वुमेन और मेंस का। ये कितना था? मेंस का कितना है यहाँ पे 850, 400, 600 यानी कि ये कितना आ गया 250 और ये कितना आ जाएगा 600। ठीक, इसको मैच करो 6, 6, 12, 12, 7, 50, 1950 ठीक है। ये भी नंबर तुम्हारा यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब वापस पढ़ते हैं। सिंथेटिक डोमेस्टिक वुमेन, सिंथेटिक डोमेस्टिक वुमेन यानी कि ये वैल्यू कितनी है 600, ये तो बराबर आ रही। पूछा क्या था? स्मॉलेस्ट यानी कि ये दोनों तो नहीं होने वाली। लेदर डोमेस्टिक वुमेन, लेदर लेदर डोमेस्टिक वुमेन, ठीक है? ये भी यार 600 आ गई तो यानी कि यही आंसर होना चाहिए। सिंथेटिक इम्पोर्टेड वुमेन, सिंथेटिक इम्पोर्टेड वुमेन यानी कि ये कितना है 400, बाकी तो तुम्हारी बराबर आ रही थी 600, ठीक है? डिफिकल्ट सेट, है ना? पेपर वाले फेज़ में मतलब दिस वुड नॉट बी माय फर्स्ट सेट टू लुक फॉर, मतलब ये शायद बाद में करना चाहो तो करना चाहो, यहाँ डिपेंड करता है बाकी सेट कैसे हैं, ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।